جو 4.5 ٹریلین روپیہ ٹیکس کا اکٹھا ہوتا ہے اس میں صرف 2 ٹریلین تقریباً قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ چلا جاتا ہے. تو باقی اگر آپ دیکھ لیں کہ 2.5 ٹریلین صوبوں کو جاتا ہے اور پھر 1700 ارب ڈیفنس پہ جاتا ہے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ شروع کرتی ہے ڈیفیسٹ سے 600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ. تو اس لیے یہ ایک لوگ دیکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ہیلپ کے لیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ 2.5 ٹریلین 2500 ارب روپیہ سیدھا صوبوں کو چلا جاتا ہے، جس میں سندھ کا اپنا شیئر پورا آ جاتا ہے. تو اصل میں تو یہ زیادہ جو کراچی کا ایشو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اربن، بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ جو حالات ہیں وہ گورنمنٹ جیتی ہے انٹیریئر سندھ سے، اور وہ پھر کراچی کو جو اس نے ٹریٹمنٹ 10 سال میں دیا وہ اب سب کے سامنے ہے. لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم یہ آج جو ایک اسپیشل پیکیج ہم نے اوور آل تیار کیا ہے اپنی ریسورسز سے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے، بی او ٹی جو ہمارے پروجیکٹس پرپوز ہیں وہ 18 ہیں. ٹرانسپورٹ جو کہ بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا، پبلک ٹرانسپورٹ، اس میں 10 پروجیکٹس ہیں. جو اس سے بھی بڑا ایشو ہے واٹر سیوریج، اس میں 7 پروجیکٹس ہیں. اور پانی کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کے لیے پوری کیمپین چلانی پڑے گی کراچی کو پانی کنزرو کرنے کے لیے، پانی بچانے کے لیے. یہ ایک ہمارے ملک میں عجیب چیز ہے کہ میں نے کبھی سنا نہیں پانی بچانے کی کوئی کیمپین کبھی پاکستان میں کبھی چلی ہو. میں آپ سب کو بتا ہی رہا تھا کہ جب ہم آسٹریلیا میں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو عموماً وہاں ہوز پائپ بین آ جاتا تھا. انگلینڈ جیسی جگہ جدھر پانی کی اتنی کمی نہیں ہے، وہاں بھی تھوڑی سی بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ پانی کو ایک دم کنزرو کرتے تھے. یہاں کبھی کسی نے کنزرو نہیں کیا. ایک طرف لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، دوسری طرف وہ پانی سے گاڑیاں دھوئی جا رہی ہیں اور کوئی کسی کو کنزرویشن کی فکر نہیں. تو اس کے اوپر ایک پوری، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک پوری کیمپین جو میں خود آ کے آپ کے ساتھ مل کے پوری چلائیں گے کراچی کے اندر. جب آپ تیاری کر لیں تو ہم کم از کم پانی بچانے کے پورے طریقے بتائیں گے، کیونکہ اس کے لیے جب تک باہر سے پانی لے کے آتے ہیں جو K4 کی بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، وہ اس کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، اور وہ کب تک کلیئرٹی اس کے اندر آتی ہے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن جو امیجیٹلی ہم کر سکتے ہیں، اگر آپ پوری لسٹنگ کر لیں، ہم پوری کیمپین چلائیں، میڈیا کی کیمپین، لوگوں کو انوالو کریں کہ کیسے پانی بچا سکتے ہیں، اور اس پانی بچانے سے بہت بڑا پانی اویلیبل ہو جائے گا لوگوں کے لیے جس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا. تو وہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ آپ تیاری کریں. سیوریج کا بہت بڑا ایشو ہے جس کے لیے ہم تیاری 7 پروجیکٹس میں سے سیوریج کے بھی ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کراچی کا ماسٹر پلان. کراچی جس طرح آپ اوپر جہاز میں آئیں تو ایسے لگتا ہے کہ پورا کانکریٹ کا سلیب پڑا ہوا ہے اوپر، کوئی گرین ایریاز بھی ختم ہو گئے ہیں، کوئی نظر نہیں آتے. اور دوسری طرف پھیلتا جا رہا ہے کراچی، جو کہ کوئی بھی جو بھی آپ کر لیں جتنا پھیلتا جائے گا اس کو آپ امیونٹیز نہیں دے سکتے، پانی نہیں دے سکتے، اس کا سیوریج سسٹم، اس کے لیے سیوک فیسلٹیز، ایون یہ جو لا اینڈ آرڈر کے لیے پولیسنگ کرنے کے لیے کہ اتنا پھیلا ہوا شہر ہو، اس کے لیے سب مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو کراچی کا جو ماسٹر پلان ہے یہ جلدی سے بنایا جائے، اور اس سے پہلے ایک انٹرم کوئی فیصلے کریں کہ اس ایریا سے زیادہ کراچی اب ایکسپینڈ نہیں ہوگا، یا ایگزسٹنگ یہ جو کچی آبادیاں سارے پاکستان میں، ایک طرف کچی آبادیاں اور کراچی میں سب سے زیادہ ہے، اور یہی کچی آبادیوں کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. توجہ تب جائے گی جب اگر پھیلے گا نہیں کراچی، تو جب کراچی ریسٹرکٹ ہو جائے گا تو اندر پھر ایریاز ڈیولپ ہونے شروع ہوں گے. اور تب اسی طرح جس طرح ممبئی میں یہی پرابلمز تھے، وہ بھی پھیل نہیں سکتا تھا، تو آخر میں انہوں نے آگے کچی آبادیوں کو ڈیولپ کر کے اوپر لے کے گئے ہیں. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک پورا ماسٹر پلان نہیں بنتا، بیٹھ کے کراچی میں ایک انٹرم فیصلے کریں کہ آپ نے کئی چیزیں روکنی ہیں کراچی میں.
क्योंकि 2.5 साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ये शहर। और अब ये जो ऊपर जाने का फ़ैसला किया है, हमने सिविल एविएशन को कहा कि सिर्फ वो जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एक दायरे में बिल्डिंग्स ऊपर नहीं जा सकती वो नोटिफाई करें, बाकी सारी जगह इजाज़त होनी चाहिए बिल्डिंग जितनी भी ऊपर जाए बचाने के लिए अपनी बाकी स्पेसेस। तो मैं आपसे इन टच रहूँगा। मैंने इमरान इस्माइल गवर्नर को मैं मुसलसल इन टच हूँ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कराची के ऊपर अब पूरी हम जो आप काम कर रहे हैं इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर जाएं कि जो हम प्लान कर रहे हैं वो कर भी सकें हम, तो उसके लिए पूरी तैयारी करें। जो भी आपको मदद चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। हमने अनाउंस किया था जब शाह महमूद कुरैशी और हम थरपाकर गए थे कि हमने सेहत कार्ड्स देने, क्योंकि सबसे पीछे रह गया थरपाकर और बच्चे मरते हैं। लेकिन हमने और भी इस बारी मैंने 4 तारीख को या जब भी आप फैसला करें, हमने यूनिवर्सिटी एट हैदराबाद ये प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट इसको चलाएगी, इसके लिए पैसे भी अवेलेबल हैं, तो इसका अनाउंस करना है। और फिर ये जो आरओ प्लांट्स हैं डिस्ट्रिक्ट थरपाकर में वो हमने अनाउंस किए थे तकरीबन 1 अरब रुपए के, वो इंशाल्लाह पूरे करेंगे। और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स जो अब निकल जाने चाहिए उनको सारा क्लियरेंस हो गई है, NOC सारे दिए गए हैं। और 4 एम्बुलेंसेस वो मैंने कहा था कि थरपाकर के लिए अवेलेबल करेंगे। कराची की तरक्की के बगैर आगे मुल्क नहीं बढ़ सकता। वजीर आजम इमरान खान का ऐसा कहना है। कराची के लिए किए गए वादे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची के लिए मुख्तलिफ प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं, सीवरेज सिस्टम पर काम किया जाएगा, उसके अलावा पानी के इशू पर जो है वो बात करना बहुत ज़रूरी है और पानी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो कराची में इस मौजू पर भी बात की जाएगी। कराची पैकेज के तहत 162 अरब रुपए खर्च होंगे और शहर कायद में 18 मनसूबों पर काम होगा। कराची पैकेज में सीवरेज, ट्रांसपोर्ट और पानी के साथ साथ दीगर मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की मंजूरी भी दे दी है। 5 अप्रैल को हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, तो इसके लिए वज़ीर आज़म ने 10 मंसूबों की मंजूरी दे दी है, जबकि 8 दीगर मंसूबे भी शामिल हैं जिनकी मंजूरी दी गई है। और इसके साथ साथ पानी की कंजर्वेशन पे भी बहुत काम किया जाएगा। पानी को कंज्यूम कैसे किया जाए और पानी का इस्तेमाल जो है, जो उसका पानी का ज़िया है, उसे कैसे रोका जाए, इस पर भी प्लान जो है वो मुरतब किया जाएगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि जब वो हेलीकॉप्टर से सफ़र कर रहे थे, कराची देख रहे थे, तो यूं लग रहा था जैसे कंक्रीट है, एक कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई बाग नहीं है और उसके अलावा लोगों के लिए कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है। अगर बाग नहीं होगा, ग्रीनरी नहीं होगी, तो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो वज़ीर आज़म ने इस चीज़ को भी एड्रेस किया कि इस पर भी काम किया जाएगा, दरख्त भी लगाए जाएंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि भक्कर के करीब मुसाफिर बस ने तालिबात के रिक्शे को कुचल डाला है। हादसे में 5 तालिबात और रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 2 जख्मी तालिबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तालिबात इम्तिहान देने के बाद वापस आ रही थी। अफसोसनाक खबर आपको दें, भक्कर के करीब मुसाफिर बस ने तालिबात के रिक्शे को कुचल डाला। हादसे में 5 तालिबात और रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 2 जख्मी तालिबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे उसामा हैदर से। उसामा हैदर, बताइएगा क्या कंडीशन है अब तालिबान? आज बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया जो है बखर जंग रोड पर जैसे वाला के करीब पेश आया, जहां पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने पेपर देकर घर जाने वाली तालिबात के रिक्शे को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 7 तालिबात जो है वो मौके पे जाम बहक हो गए, जबकि एक रिक्शा ड्राइवर है उसकी डेथ हुई है। इसके बाद अहले इलाका की कसीर तादाद जो है मुश्तिल अफराद की यहाँ पर मौजूद है और उनका एक ही बात पर जो है ये फोकस है कि इस जो बस सर्विस है उसको फिलफोर जो है इसका रूट कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये इस बस सर्विस का मुसलसल 5वां हादसा है जिसमें एक ही हादसे में 7 से 8 अफराद की हलाकत हुई है। यहाँ ये भी बताते चले कि वाकये की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर बकर वकास रशीद और जो डीपीओ शाइस्ता इकराम है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने जो है हालात को जो है जायजा लिया और फौरी तौर पर इमदादी कामों को जो है वो शुरू कराया। रेस्क्यू 1122 ने जो है फौरी तौर पर। ठीक है उसामा, ये बताएगा कि कुल कितनी तालिबात मौजूद थी इस रिक्शे में और जख्मी कितनी तालिबात हुई हैं? जी, इसके अंदर जो है रिक्शे में 8 टोटल अफराद सवार थे, इसमें एक रिक्शा ड्राइवर था और 7 तालिबात थी।
जिसके अंदर जो है 6 जो है वो मौके पे जान बाग हुई और 2 को अस्पताल जब मुंतकिल किया गया तो रास्ते में एक स्टूडेंट जो है वो उसकी मजीद हलाकत हुई। जिस तरह जो है कुल तादाद जो जान बाग तालिबात की तादाद 7 है और एक जो रिक्शा ड्राइवर इस समय 8 अफराद की डेथ हुई है। जी ठीक, और समा डॉक्टर्स क्या बताते हैं तालिबात की कंडीशन के हवाले से इस वक्त? आज ही जो एक जख्मी जो तालिबा है उसकी हालत जो है इस वक्त खतरे से बाहर है, उसकी ज़राई तिब्बी इमदाद दी जा रही है और डॉक्टर्स का कहना है कि वो नॉर्मल है, उनको जो टांग पे जो है वो चोट लगी है जिसके बाद उन्हें तिब्बी इमदाद देके अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। जी ठीक, उसामा एक बार फिर नाज़रीन को इस हादसे से मुतालिक बताएगा कि ये अफसोसनाक वाकया कब, कैसे और कहां पर पेश आया है? जी ये अफसोसनाक वाकया अब से कुछ देर कबल बखर जंग रोड पर जैसे वाला के करीब पेश आया, जहां पर नाहम जमात के तालिबे इल्म का रिक्शा जो है उन्हें वापस लेकर घर जा रहा था। आज केमिस्ट्री का पेपर था, उसके बाद जो तालिबात फारिग होकर अपने घर जा रही थी पेपर देने के बाद के मुखालिफ सिमत से आने वाली बस जो कि मुल्तान से रेल खान जा रही थी, उसने जो है तेज रफ्तारी के बाइस उस रिक्शे को जो है कुचल डाला, जिसके नतीजे में 6 तालिबात जो है वो मौके पर जाँ बाग हुई और रिक्शा ड्राइवर था वो मौके पर जाँ बाग हो गया और जो 2 तालिबात थी वो जख्मी थी। उन्हें जो थोड़ी देर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो रास्ते के दौरान एक मजीद तालिबा जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। अहले इलाका जो तमाम इस वक्त मौके पे अफराद हैं उनकी जो है आंखें इस वक्त नम है, पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है, तमाम अफराद जो है इस वक्त शोक में है और जो अहले इलाके हैं उनका यही कहना है कि राना जहाजेब नामी जो निजी बस कंपनी है जिसको फिलफोर जो है इसके रूट कैंसिल किए जाए ताकि जो इंसानी जानों की जो खेलने का सिलसिला है इसको रोका जा सके। मजीद नाज़रीन को अपडेट करें कि बखर जंग रोड जो है इस वक्त ब्लॉक है, दोनों जानिब ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची हुई है, डिप्टी कमिश्नर और DC और जो डिप्टी साहब हैं वो भी मौके पे पहुंची हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि अहले इलाका को मुज़ाकरात करके उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएं।